morning students, my name is Harshimran and today we will study about calorimetry. Calorimetry is, what is calorimetry? Calorimetry is the heat transfer between two substances due to some temperature difference. मतलब कोई दो ब्लॉक हैं, उन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, अगर हम उनको साथ रखते हैं, we put them together, तो हम क्या देखेंगे कि वो एक ही टेम्परेचर के हो जाएंगे. हम ये देखेंगे कि अगर ये डस्टर है और मैं ये डस्टर पर दो ब्लॉक जो एक डस्टर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है. मैं इनको साथ रखता हूँ तो कुछ देर बाद क्या होगा, इनका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. इनका टेम्परेचर इक्वल होगा. क्यों हुआ? क्योंकि 100 डिग्री वाले ने अपनी तरफ से कोई हीट ट्रांसफर करी 1 डिग्री वाले के पास, इसने कुछ हीट ट्रांसफर करी. So heat transfer between two substances, due to some temperature difference, is known as calorimetry. अब what? अगर तुम्हें definition चाहिए तो ये लो. Heat transfer between two substances due to temperature difference is calorimetry. अब calorimetry में हमने देख लिया दो ब्लॉक है, तो उनका जो भी चेंज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर ड्यू टू हीट ट्रांसफर. तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट जो है इट इज डिनोटेड बाय C. Specific heat is nothing but the amount of heat required. It is nothing but the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree Celsius. मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने में उसको कितनी हीट लगेगी, ये स्पेसिफिक हीट होता है. स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास change in temperature, or we can write this is the formula for specific heat. This is our equation 1. This is the formula for specific heat. And specific heat के बाद what we see, heat transfer, heat required change in temperature. Heat required to change in temperature. Heat required to change temperature. Heat required to change in temperature. अब heat required change in temperature में क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन 1 है. From equation 1 we have what we have Q heat required to change in temperature, heat है हमारे पास, तो हो जाएगा m C del theta del T and same m C del theta. This is the formula for the change amount of heat required to change in temperature. Heat required to change in temperature. But ये क्या ऑब्जर्व होगा जब वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा. If it is liquid, it will be liquid. If it is air, it will be in air. If it is solid, it will be solid state. It will not change its state. It will just change the temperature. It will just change. If we say there is a ice
of minus 100 degree Celsius, there is a rise of 0 degree Celsius. So what the temperature difference is 100 degree, but the state is solid. The state is solid. When the state doesn't change, we will use this formula. Again, there is one thing also. It's a point to remark or points to remember. एक point है, what if the heat required is given in a as a function? Heat required is given as function. अगर वो एक function के रूप में दिया होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. What we will do, we will integrate the cube like this. M is constant, so it will C theta initial minus theta final and mass temperature initial temperature final C dt. We will change nothing, but we will integrate the formula of the heat required to change in temperature को वही हम इंटीग्रेट कर देंगे. इससे अगर कभी भी कोई क्वेश्चन का फंक्शन के रूप में दिया होगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ से. नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट. नेक्स्ट आता है latent heat is denoted by L. अब latent heat आ गया वही कि बर्फ को पानी में कर दो, पानी को हवा, या बर्फ को सीधा हवा कर दो. The heat required to change the temperature as well as the state of the substances or the body or the mass. It is nothing but the amount of heat required, the amount of heat required to change the state of unit mass of the substance. Unit mass of the substance. Amount of heat required to change the state or the phase of the unit mass of the substance. मतलब बर्फ है, बर्फ को मैंने पिघला के पानी को हवा बना दिया. यही लेटेंट हीट से हम कैलकुलेट करेंगे. लेटेंट हीट से हम कैलकुलेट करेंगे. लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है L G Q by unit mass by unit mass. ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेटेंट हीट का. नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, कि जो लेटेंट हीट है इसमें वेरिएशन है. Two kind of variation is given in that if जो हीट ट्रांसफर करके if we convert solid to liquid हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम latent heat of fusion. ये हम क्वेश्चन में भी हम बहुत बार देखेंगे कि वो बोलेगा कि पहले बर्फ था, बर्फ से पानी हुआ, पानी से हुआ हवा. तो पानी बर्फ से हवा तक में हमें ये भी सॉलिड टू लिक्विड भी पूछा जाएगा और लिक्विड टू गैस भी जाएगा. तो जब सॉलिड से लिक्विड होगा तो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF. ऐसे ही जब लिक्विड टू गैस होगा या हवा होगा या एयर होगा तो हम इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये लुई विटॉन वाला LV नहीं है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला LV है. तो जब भी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो हमें कुछ गिवन होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एक वैल्यू गिवन होगी, या लेटेंट हीट ऑफ गैस या वेपोराइजेशन की हमें वैल्यू गिवन होगी. जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन देखते आएंगे वैसे सब इसके मिलता जाएगा.
जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लेट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मतलब रूम टेम्परेचर मान लो जो हम रिक्वायर्ड तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 this from this we have Q is equal to ml। हीट रिक्वायर्ड आ जाएगा मास इनटू लेटेंट हीट। ये हमारा हो गया कैलोरीमेट्री यहाँ पे खत्म। कैलोरीमेट्री इतना सही था कि हमने से हीट ट्रांसफर के बारे में बताया था कि कैसे होता है, क्यों होता है और किस चीज की नीड होती है। हम इससे रिलेटेड देखेंगे कुछ क्वेश्चन, देखेंगे। अब हमें क्या क्या क्वेश्चन काम में आने वाली है, हमें सारे क्वेश्चन काम में आने वाले हैं। हमें स्पेसिफिक हीट भी काम में आएगी, हमें हीट रिक्वायर्ड भी काम में आएगा, हमें लेटेंट हीट भी काम में आएगा। हमें जब चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, लिक्विड से गैस से हवा होगा या एयर होगा या वेपर फॉर्म में होगा, हमें वो चीज भी काम में आएगी। और हमें हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन स्टेट, ये चीज भी काम में आएगी। हमें हीट रिक्वायर्ड अमाउंट भी बताना पड़ेगा कि बर्फ से पानी बनने में, पानी से हवा बनने में उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, कितनी हीट उसको लगी। तो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा है हाउ मच रिक्वायर्ड टू चेंज 15 degrees Celsius of ice, minus 15 degrees ice to 100 degrees Celsius vapor. How much heat will require to change the minus 15 degrees Celsius of ice? Ice का टेम्परेचर हमें गिवन है minus 15 डिग्री सेल्सियस और वेपर का टेम्परेचर हमें गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको कितनी हीट रिक्वायर होगी, माइनस 15 से 100 जाने में। और इस हीट को दो बार चेंज करना है। दो बार कैसे? पहले तो लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से गैस में होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमें क्या गिवन हमें क्या है? गिवन हमें है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की हमें गिवन है 0.53 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। फिर हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हमें गिवन है कितना गिवन है 80 किलो कैलोरी पर ग्राम। फिर हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमें कितना गिवन है 539 कैलोरी पर ग्राम। फिर हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये हमें गिवन है 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सॉल्यूशन में to make easy for you guys, ice at minus 15, then ice
at 0 degree, water at 0 degree, water at 100 degree. Boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक मोमेंट पे तो पानी ही रहेगा, वेपर बनने से पहले पानी रहेगा 100 डिग्री होने पर। फिर अगर स्टीम और गैस देखो, वेपर पूछा है, गैस स्टीम सब एक बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। Q1, Q2, Q3, Q4. Heat transfer to become to convert this to this to this Q1, इन सबका एडिशन टोटल हीट ट्रांसफर हमें निकालना है। Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 कैसे निकालेंगे? हमारे पास Q1 तो I से IC है, I से IC है, तो हमें इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। Q1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? Q1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? MC del थीटा, MC del थीटा। तो M कितना है? M कितना है? अरे M नहीं बताया, अभी कितना है? तो मास था 8.0 ग्राम, 8.0 ग्राम मास था, मास 8.0 ग्राम था। तो आ जाएगा ये C कितना है? CI कितना है? 0.53, 0.53। चेंज कितना है? 0 से 15, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो गया 0 माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फर्दर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60, इसको आ जाएगा कितना आ जाएगा? 64.6 कैलोरीज, 64.6 कैलोरीज हमारे पास आ गया Q1। इसी तरह से हम Q2 निकालेंगे। Q2 में क्या होगा? Q2 में स्टेट चेंज हो रही है ना, Q2 में स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? ML होगा, ML होगा, क्योंकि Q निकालना है। Q इक्वल, जब L का फॉर्मूला था Q बाय M, तो अब अगर हम Q निकालें तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML हो जाएगा फॉर्मूला। तो ML में हम निकालेंगे, M हो गया हमारा A, L फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, तो होगा फ्यूजन। इसका मतलब 80, ये हो जाएगा हमारा 640 कैलोरी। फिर इसी तरीके से निकालेंगे Q3 में क्या हो रहा है? Q3 में सिर्फ वाटर हो रहा है, मतलब ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो मास 808, यहाँ पे 0.53, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस। एंड चेंज कितना हो रहा है? 100 से 0, 100 माइनस 0, फिर आ जाएगा 800 कैलोरी। फर्दर Q4 में स्टेट चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा? 8 और L भी हो जाएगा 539, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 4312 कैलोरी। अब क्या होगा? Q फाइनल निकालने के लिए, Q फाइनल टोटल हीट रिक्वायर्ड हम कैसे निकालेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इजिकल टू हमारा आ जाएगा 5812 कैलोरीज। इतनी हीट रिक्वायर होगी 15 डिग्री सेल्सियस की आइस को पिघला कर, पानी बनाकर 100 डिग्री सेल्सियस पे हवा करने में इतनी हीट रिक्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें हमने सारे फॉर्मूला, ये चीजें हमें गिवन होगी, हमेशा गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो कुछ और गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर ये चीजें गिवन होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये वाटर के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड है, वाटर और आइस के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? हमने क्या किया? हमने बर्फ पिघला के पानी बना दी, पानी को हमने हवा कर दिया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो बोलते जाऊंगा, लिखते जाना।
अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। उसके बाद हम नया क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो एक्चुअली बहुत बड़ा है। क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूँ और जो मेन की पॉइंट्स हमको क्वेश्चन में लिख दूंगा। क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स। टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स। लिक्विड्स हैं ए, बी एंड सी, उन तीनों का मास इक्वल है और 3 डिफरेंट लिक्विड है, 3 अलग टेम्परेचर। एक का है 12 डिग्री सेल्सियस, एक का है 12 डिग्री सेल्सियस, बी 16 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 19 डिग्री सेल्सियस, सी 28 डिग्री सेल्सियस। And what question is saying, when A and B are mixed, when liquid A and B are mixed, then A and B are mixed, it became temperature of 16 डिग्री सेल्सियस। अगर A और B को मिक्स करेंगे तो उनका फाइनल रिजल्ट होता है 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब 16 डिग्री सेल्सियस पे वो आकर रुक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, if B and C are mixed, B and C are, it became 23 डिग्री सेल्सियस। B और C को मिक्स करेंगे तो 23 डिग्री आएगा। तो what will be the temperature of liquid when A and C are mixed? मतलब A B को कर लिया, B C को कर लिया, A और B को कर, A और C को करने पर क्या टेम्परेचर हो जाएगा उन दोनों लिक्विड्स का, ये हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे स्टार्ट करें? सर मास गिवन नहीं, लेकिन हमें मास गिवन नहीं, लेकिन हमें एक चीज गिवन है। हमें क्या चीज गिवन है कि उन तीनों का मास इक्वल है। तो लेट द मास ऑफ लिक्विड A, B, C is M mass, and the specific heat of liquid A, B, C. It will be easy for us. So let's suppose when A and B are mixed. Let's suppose A and B are mixed. So heat gain by A equal to heat lose by B। जितना इसके पास ये जितना लूज रहेगा उतना ही इसको मिलेगा, ज्यादा लेना मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी लेकिन हीट में, द हीट गेन बाय ए, मतलब जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा और जिसका कम टेम्परेचर होगा, अगर उनमें बराबर होता है तो जो ज्यादा वाले ने जो लूज किया होगा उतना ही कम वाले के पास ज्यादा होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एम मास स्पेसिफिक हीट, चेंज कितना आया, इसका इनिशियल था, ये मिक्स करने के बाद 16 डिग्री था, कितना 12, तो 16 माइनस 12 गेन हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 16, 19 माइनस 16 लॉस, 19 माइनस 16, इसने इतना गेन किया, इसने इतना लॉस किया, तो इसका हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एम से एम कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 एस, सॉरी एस बी 4/3 एस ए। स्पेसिफिक हीट आ गई हमारे पास बी की 4/3 एस ए। फिर when B and C are mixed, when B and C are mixed, तो SB में कितना है 19 माइनस 23 माइनस 19 इक्वल्स टू मास SC 28 minus 23. Heat gained by B, heat lost by C. तो इसमें हमारे पास SC will become 5/4 SB, 5/4 SB. Then from A, then from 1 and 2 and 1. This equation we get what we get as A is equals to SC is equals to 5/4 एस बी की वैल्यू कितनी है 4/3 एस ए। ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2। तो इससे हमारे पास आ गया एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, ये 4/5 है ताकि देन तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/15 एस ए। 16/15 एस से हमारे पास आ गया। देन क्या होगा when A and C are mixed, now जो क्वेश्चन मांग रहा है A and C are mixed, so MSA heat gained by A थीटा माइनस, यही तो निकालना, हीट गेन नहीं तो निकालना, तो थीटा माइनस 16/15 एस ए and equals to heat loss by C, and as C 16/15 minus theta when A and B are mixed, हाँ तो हम क्या कह रहे थे, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 16/15 एस से 16/15 एस से। नाउ A and C are mixed, now when A and C are mixed, तो क्या होगा MSA थीटा माइनस 12, ये टेम्परेचर तो हमें पता ही नहीं है ना, चेंज कितना हुआ इजिकल्स टू
and SC 28 minus theta. इनिशियली 28 था. हीट गेन एंड हीट लॉस, ये हीट गेन हमें नहीं पता, ये हीट लॉस हमें नहीं पता, तो क्या होगा ऐसे इज टू थीटा माइनस 12. एस सी की वैल्यू क्या है? एस सी की वैल्यू क्या है? 16/15 एस ए 28 माइनस थीटा. ऐसे भी ऐसे कर दिया, फिर क्या हो गया? थीटा माइनस 12 इज इक्वल टू 16/15 28 माइनस थीटा. आगे हमारे पास फाइनल इक्वेशन. अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम क्या निकाल लेंगे? हम इससे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके, एंड थीटा विल बिकम अब इसको आप सॉल्व कर लेना. थीटा विल बिकम 20 डिग्री एंड थीटा विल बिकम 20.26 डिग्री सेल्सियस. तो ए और सी को मिक्स करेंगे जब हमें मिलेगा 28 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.